compare instruction. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So compare instruction में हमने ये कॉन्टेक्स्ट किए थे, राइट? और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में समझा, राइट ना? Yes, sir. Now move to next. In this instruction, as you have can see that equal to, not equal to, greater than equal to, less than equal to, greater than, less than. अब यहाँ पे हमारे पास एक और instruction that is called in range. So what is सर in? वॉइस क्लियर नहीं है सर. अभी है? Yes, sir. यस सर. Okay. So in range is nothing but this thing in a block form. This thing in a block form. जब हम range में काम करते हैं, when we are working in a range, that if we want to break a process into multiple processes, then we'll compare the whole process with small amounts. Okay. तो वहां पे क्या करेंगे, एक रेंज डिसाइड कर देंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था. तो अभी ये जो ब्लॉक है, दिस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट having now the block shape. So in here, as we can see, like in the context, we have to mention 2 times the comparing value. So at here, we'll mention the whatever the address will mention at top, and that will be comparable. We'll mention over here in val. Val means value, MW2. And at bottom, we have mentioned the static values, either in the form of direct addressing or indirect addressing. Both we can do over here. डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या करेंगे, सपोज हमने चाहिए कि 327 MW2. ओके, तो 327 की रेंज में ये ब्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करेगा. दैट मीन्स फ्रॉम 3 to 7 this particular block giving this signal towards the output. So same as like in minimum, we can mention that this is the minimum range and this is the maximum range. This is the permissible range, that is from 3 to 7. Below 3 and above 7 कोई भी आउटपुट नहीं जाएगा, वैसे ही यहाँ पे भी नहीं जाएगा. तो ब्लॉक फॉर्म में ये इजी हो गया समझना कि मिनिमम यहाँ पे है और मैक्सिमम यहाँ पे है. ओके, नाउ लेट्स चेक P. So as you can see, there is no comparator data byte with the name of byte. It will be coming with the integer and then real and long real, double integer, real and long real. In this, if I check, we have so much options at here, but in there we have limited options. Okay, so
सेम ही काम करेगा यहाँ पे. सपोज आई टेक अ इनपुट I0.0 U0.0 W2 ये 7 की रेंज है. यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं. यहाँ पे डाल देते हैं 9 से 15. वही चीज Q0.1. अभी क्या किया हमने MW2 जो हमारी मशीन है, we have divided into two sub-processes. One, that when the machine within the count of 3 to 7, then this output or this sub-process will be turned on, having output Q0.0. When the process is at 9 to 15 counts in between, then this sub-process will be turning on, having Q0.1 output. How we can do that? We'll perform the logics with the help of timer, because we don't have any automatic moving things or moving counts with us right now, as we are working with the simulator. So let me take the watch table, because we know that we can only write in the watch table by using in the memory by using watch table. So here is watch table. कौन से ले रखे हैं? MW2 ही है. Okay. So suppose अभी हम MW2 में 2 डाल रहे हैं. That means that will be thing that will be coming automatically from the machine side. Right now we don't have any machine, so we are putting it manually by using watch table. Okay. So and at here I'm turning on I0.0 1 and on. So our I0.0 is in on condition, but as you can see, the data, the machine giving 2 counted here. So it will be below 3. So no output will be turned on. As it will move to 3, right? So this output goes high, and it will be turned on or remained on till 7. As you can see over here, MW233, and till 7 it will be on. Now we will turn to 8. The output goes off because the permissible range will be exceeded. Now what we can do, if we are working with the process below 3 and above 7, we can generate alarms. How we can do that, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि अगर सपोज यही एक प्रोसेस है, सपोज वी आर मेंटेनिंग अ टेम्परेचर ऑफ अ सिलो. Okay, then what happened? Suppose 30 डिग्री सेल्सियस एंड 70 डिग्री सेल्सियस. बिलो 30 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे पास सिग्नल आता है, देन एक अलार्म जनरेट होगा. तो फॉर एन एग्जांपल विल टेक ब्रांच, इसी को ले लेते हैं अलार्म जनरेशन के लिए. बिलो लेस देन 3, between 1 to 3, rename low limit alarm, and this particular output will be connected with the buzzer, same as like
greater than 7, that means I have to take greater than only, so that when it will be at 8, it will giving alarm to Q0.2, that will be connected with another buzzer that will be of high limit alarm. It will be connected with the buzzer right now. So suppose this is 30%, this is 70%, and below 30, this should be turned on. Above 70, high limit alarm should be turned on. So right now we have a higher limit alarm because the value in it is 8. What happened? It will be in 7. That will be the permissible range. So this is in range. So हमारा normal output जो process है वो चल रहा है. What if below 3? That means 3 here. यहाँ पे 2 करना चाहिए था हमें. और यहाँ पे अगर 3 भी रखना है, then less than. We need to put less than. As you can see, नॉर्मल चल रहा है. 3 तक हमारी परमिसिबल रेंज है. सो 1 to 2 के बीच में हमारे पास अलार्म जनरेट होगा लो लिमिट का. So low limit alarm will be generated. So this is how we can work in a range. So this is in the contact forms comparator, and this comparator is in a block form, and this comparator is in the range. In the range means whatever you will providing the parameters over here. If the process is in between the values you have mentioned in minimum and max, then it will give giving the output. Now the other is outrange. Outrange is opposite to in range. That means, as you can see, below 2. That means below 3 and above 7, it will give the output. That is outrange. In permissible range, it will not giving the output. It will not giving the output. So instead of using these two things, we can use outrange block over here. So outrange means whatever the inputs, minimum and maximum, you will define to the block. If the data in between that value, then it will not give the output. It will giving the output if they are not equal to or without or not within the range. So below 3 and above 7, it will giving the output. As you can see, this is 2. Now if I'll put 8 over here, so out of permissible range, it will giving the output. So in between 3 to 7, suppose I'll take 5 over here. As you can see, it will not provide any output. So this is outrange. As its names suggested that whatever the permissible range, it will giving the output when they are not in the permissible range. Okay, so this is the next instruction, that is outrange. उसके बाद है हमारे पास ओके नॉट ओके. ये हम बाद में करते हैं क्योंकि ये रियल नंबर्स के साथ है, इसे हम लोग बाद में करते हैं. तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन समझ में आया कैसे है, कैसे यूज करना है. Yes, sir. Okay, so next instruction is our timers. Timers. अब एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि टाइमर्स में आपको साथ यहीं पे रन करके बताऊं या प्रेजेंटेशन में पहले प्रेजेंटेशन दूं आपको इस चीज की. ठीक है, अगर कोई जवाब. ओके, प्रेजेंटेशन थ्योरी के साथ कर लेते हैं. Yes, sir.
Is my presentation visible? Yes, sir. Okay. So we have IEC timers. IEC stands for International Electrotechnical Commission. International Electrotechnical Commission. So this is the firm which will standardize what we are going to use in software and electrical and electronics equipment. Okay, so IEC stands for International Electrotechnical Commission. These are vendor-free instructions. Vendor-free का मतलब ये है, it will be open to all. Each and every brand has their own proprietary instructions. Like Siemens has S7 instructions. So Siemens has S7 timers. Okay, so that timers has some resolution, has some limit. So in Siemens, if we'll talk about proprietary timers, so there are total 256 timers, and it will be starting from T0 to T255. T0 to T255. Okay, so that is the maximum limit, and it can be only used by the Siemens and can be only used with the help of Siemens software. Same as like Allen Bradley has their own proprietary timers and counters. Again, they have T0 to T255, that means 256 timers are there. But the time resolutions compared to Siemens timers is a bit different. Okay, now we cannot use the other brands timers into Siemens and Siemens timers into other brands. So in industry, we'll find different type of things, different type of controllers. So for that, a vendor-free timer is designed, and that is IEC timers. Now, it is compatible with each and every brand software. Each and every brand software. So this is not a proprietary. This is a open source. So if you worked on IEC timers, then if you go with the Allen Bradley, so they'll have the same IEC timers over there. So you can use the timers, whatever, doesn't matter on which particular software you have learned it, that will be same. So this is IEC, International Electrotechnical Commission. So what is the use of timer? Timer is used to monitor, provide delay, provide time to control or manipulate the processes, different processes. The syntax to load the time is T hash. T hash is the syntax to load the time. Or a single timer can give you that much of time. That means 24 days. This is the format, and according to this format, you have to designate or define the time in the timer. Suppose if you want to use the days, then 24 days is the maximum day. If you want to use hours, then underscore, then 21 hours is the maximum hours, and minutes underscore again 30 minutes underscore 23 seconds and underscore 64 milliseconds, 647 milliseconds. So this is the maximum time a timer can provide you. That means a timer can provide you 24 days of time, in which 21 hours, 30 minutes, 23 seconds and 647 milliseconds. अगर आपको आवर्स में टाइम देना है तो 21 आवर्स का टाइम दे सकते हो, मिनट्स में 30 मिनट्स का. ठीक है, तो अब it doesn't mean that by having 24 days time, so it is specific to any day, date or weekday. Whenever you'll turn on the input of the timer, from that particular time it will start calculating the 24 days time. It is not specific to any day, weekday, date or date. Suppose if you think, okay, today I'll turn on the timer, so today's date is 17. So you want to put that date in the timer, that okay, on that particular of date, at that particular of time, on that particular of day,
this particular process should be turned on or turned off. That will not be happened by using timer only. For that purpose, we have another instruction that is called clock. Clock is used to give time. That means time means the span of 100 years. You can program a PLC for next 100 years. For next 100 years. On that particular instruction, that means clock, we have the option to introduce the particular year, month, weekday, date, hours, hours in either in 24 format or in 12 hours format. Okay, so we can do that with the help of clock only. But with this timer, it is not related with the any specific date, time, or day. So whenever you will turn on the timer, it will start calculating. If you have given the maximum time, that will be 24 days. So it will start calculating 24 days from that particular sort of time when you will turn on the input. So that will the thing that will be keep in your mind कि ये different instruction होता है जिसमें हमें date, time और year हम mention करते हैं. That is clock. यहाँ पे आपको सिर्फ यही मिलेगा. Okay, now the most important thing that will be written over here, that is our timers. That means the IEC timers are of 32-bit. Are of 32-bit. That means to store the result of a timer or to store the time of a timer, you have to use double memory word as a storage unit. Double memory word, MD. Timers are of 32-bit. Each and every timer can provide you that much of time. Now, we'll talk about how many timers we can designate in the program. So there is no limit. It will depend upon the memory of your system. As much as the memory you have in your system memory, that much timers you can deploy or implement. As like proprietary, we have only 256 timers. 256 means numbers, 30 to 255. There are only 3 timers, T on, T off, or TP, pulse timer. There is one more timer that will be related to T on, that is T on R. So there are only 3 timers, T, TP, pulse timer, T on delay timer, T off delay timer, and the third one is same as like T on but having a different features. So there are only 3 timers, but you can repeat each and every timer, or you can say a timer up to 256 times. As in total, you have 256 timers if you are working with a proprietary system. But in case of IEC timers, we don't have any specific memory for timers. It will depend upon the size of your system memory. As much as you have the system memory in your system or PLC, that much timers you can use. And each and every timer can give you that much of time. Now, if a question arises, why proprietary timers having T0 to T255? And why we don't have any specific number for timers in case of IEC? The reason is that proprietary timers having a memory location, that T0 to T255 is a memory location. That means T0 holding a memory. And according to the time, the timer you have used, it will be reflected by this T0. The features, the characteristics of the timer that will be carried away by the T0. That means the timer number. So in proprietary timers, we having a specific memory for each and every timer. In IEC timers, we don't have any specific memory. Proprietary timers, why they are giving up specific memory? So that CPU can easily access the timer. Identify that, okay, this particular signal is coming for this particular timer. But in case of IEC timers, we don't have any memory that will be designated into the PLC through which a CPU can read out
what is this particular instruction and what are the parameters and which signal is related to this particular instruction. So for that, each and every timer come up with a instance data block. Have we discussed blocks before? हमने ब्लॉक्स डिस्कस किए पहले? कोई बोलेगा? अच्छा, ब्लॉक्स डिस्कस नहीं किए हैं. ओके, चलो पहले ब्लॉक्स ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर टाइमर करते हैं. Okay, we have blocks with us. Okay. And हम लोग फिर से टाइमर स्टार्ट कर लेंगे. So, is my presentation visible now? Visible तो है. Blocks. PLC has 4 types of blocks. One is OB, organizational block. Other one is FC, function. Third one is FB, functional block or function block. And fourth one is data block. And data block is categorized into 2 subparts. One is shared or global DB, that means shared and global data block. And other one is instance data block. So, have any of you having an idea of what is OB? Where we are using OB, and we have used this or not? OB. Yes, sir. What is OB? सर जिस पे सर हम अपना प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, मतलब डिजाइन करते हैं लॉजिक. OB is called a cyclic block. This is the only block that has a capability to download the program into load memory. और जो ये FC FP DBs हैं, इनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है. That means, अब यहाँ पे समझो, ये 3 टाइप के ब्लॉक्स हैं. DB को छोड़ देते हैं अभी. OB, FC एंड FB, इन तीनों में ही हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. डिफरेंस ये है कि इन OB we can assign the physical addresses directly. I0.0, I0.1, Q0.0 and all that. But in FC and DBs, when we are designing a program, we are using symbolic addressing. We do not assign any physical address to it. These blocks are called subroutines. FC and FB are called subroutines. सबरूटीन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज आपके पास, आप एक इंडस्ट्री में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपने ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनमें सेम लॉजिक लगेगा, या उनका जो लॉजिक है या जो आप प्रोग्राम बनाने वाले हो सभी का सेम है, बट इनपुट्स आर डिफरेंट. सपोज 10 मशीन है, 10 मशीन के लिए उनकी प्रोसेसिंग जो है, जो प्रोग्राम उनके लिए बनने वाला है, आफ्टर स्टडिंग और अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, यू आर आइडेंटिफाइड दैट कि ओके ये 10 मशीन है जिनमें सेम टाइप का प्रोग्राम बनेगा. बट प्रॉब्लम ये है कि इनके इनपुट्स डिफरेंट है. तो होगा क्या? ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू डिजाइन द सेम प्रोग्राम 10 टाइम्स एंड गिव 10, सपोज 10 इनपुट्स है या 100 इनपुट्स है, वो देनी पड़ेंगी आपको.
तो सपोज आपने 10 प्रोग्राम बनाए और ये 10 प्रोग्राम बनाए आपने 10 नेटवर्क्स में, तो 10 नेटवर्क्स में जो इनपुट एंड आउटपुट जो एड्रेसिंग है वो डिफरेंट है, बट 10 नेटवर्क्स का जो प्रोग्राम है वो सेम है। डिफरेंस क्या है? इनपुट्स एंड आउटपुट्स का। तो 10 प्रोग्राम को बनाने के लिए आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, आप सेम टाइप का प्रोग्राम बना रहे हो 10 टाइम। So instead of doing that, what we'll do, we'll design that particular program that will be common for 10 other machines, but having different inputs and outputs, either in FC or in FB. What is the difference between FC and FB? I will tell you. But हम या तो FC में भी बना सकते हैं और FB में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या करेंगे कि वहां पे हम लोग उनको एक स्टैंडर्ड सिंबल दे देंगे, एक ब्लॉक के अंदर एक ही प्रोग्राम बनेगा, उसको स्टैंडर्डाइज सिंबल दे देंगे। फॉर एन एग्जांपल स्टार्ट, स्टॉप, मशीन नंबर 1, मशीन 2, लाइक दैट, ओके। एंड दैट पर्टिकुलर ब्लॉक आफ्टर गिविंग द सिंबॉलिक एड्रेसिंग विल सेव इट एंड वी कॉल इट इनटू द ओबी। जो भी इन दोनों में से ब्लॉक में हमने प्रोग्रामिंग की है, सिंबॉलिक बनाया है, उसके बाद उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम लोग कॉल करेंगे ओबी के अंदर। नाउ इन ओबी दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम विल बी ओपन इन अ ब्लॉक फॉर्म, एक ब्लॉक की फॉर्म में आएगा और विदाउट डेजिग्नेटिंग एनी फिजिकल इनपुट और आउटपुट। नाउ आपने फर्स्ट नेटवर्क में आपने उस ब्लॉक को कॉल किया। नाउ यू हैव अ ऑप्शन which type of input you want to give, because you already symbolize or giving the option to insert the physical input, okay, but you haven't insert the physical input, you have just given the symbolic addressing। अभी हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी करते हैं इसके ऊपर। देन होगा क्या कि आपने एक ब्लॉक में एंटर किया, आपने एड्रेस किया। अब बट अबाउट द 10, again call that block in network number 2. Now again the same program will be called having the symbolic addressing. Now you can designate a different input and output to it. Same as like that, you can call the program 10 times, 20 times, 40 times as per the requirement कि हाँ कितनी machines के लिए same type का program बन रहा है, और उनको different inputs और outputs designate कर सकते हो। So instead of designing that program for 10 or more than 10 times or whatever the count, आपको सिर्फ उसे एक ही बार डिजाइन करना है। और कहाँ डिजाइन करना है? इधर इन FC और FB, और उसे कॉल करना है OB के अंदर। Reason is that FC and FB don't have the capability or doesn't have the capability to load the parameters into the load memory of the PLC. This OB is having that capability. This OB having the capability. और OB को साइक्लिक इसलिए कहा जाता है कि इसी ही ब्लॉक के अंदर हमने स्कैन साइकिल की बात कही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रीडिंग द स्टेटस ऑफ द इनपुट एंड लास्ट राइटिंग इनटू द आउटपुट, वो जो स्कैनिंग है दैट विल बी परफॉर्म्ड इन द OB ओनली। दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज cyclic block. And what is OB? OB is an organizational block where we'll write a program into in a language, either ladder language or different other, we have 5 languages, and then we'll load that program into the PLC. So this is the user, this is the interface between PLC and user, OB, and it is called a cyclic block. Okay, there are 122 different OBs. टोटल 122 OBs होते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द PLC some of the OBs are compatible as per the PLC we have. Right now we have around 14 or 15 OBs that will be compatible with 1200 right now, okay, out of 122। उन्हें कहते हैं इंटरप्ट्स, टाइम डिलेड इंटरप्ट्स, हार्डवेयर इंटरप्ट्स, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। और ये इंटरप्ट्स क्या होते हैं, चलो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। OB जो है ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक है। OB फॉर्म्स द इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूजर प्रोग्राम। अब नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास? PLC है,
और हमारा लैपटॉप है। इसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर हमने ओपन किया है OB। So OB is the interface between the user and your PLC. The entire program can be stored in OB1. Out of 122, the cyclic block is OB1. That's why आपने जब भी ओपन किया तो वहां पे मेन OB1 लिख के आता है। तो 1 का कारण ये है बिकॉज देयर आर मैनी नंबर्स। तो OB1 is the logical block which has the cyclic execution. Cyclic execution का मतलब है कि after each and every scan cycle it will repeat itself. Scanning will repeat itself, so that whatever the changes in the status of inputs as well as output, that will be updated into the load memory of the PLC. The programming done in OB is called linear programming. तो जो भी प्रोग्राम हम सिर्फ OB के अंदर करते हैं that is called linear programming. अब इसका भी डिफरेंस बताऊंगा ये होता क्या है। और वट एवर द प्रोग्राम्स वी आर गोइंग टू डिजाइन इन FC और FB, that is called, and then after that that program will be called into OB. This is called structured programming. So there are two types of programming. One is linear programming and other one is structured programming. In linear programming, we'll design the whole program in the OB only. We'll design the whole program in the OB only. And in structured programming, we do not design anything in the OB. We'll design the program either in FC or in FB and then call it into the OB. This is called structured programming. कि हमने OB के अंदर कुछ भी नहीं बनाया, हमने क्या किया FC और FB के अंदर कोई प्रोग्राम बनाया है. Then after that we'll call that block into the OB and this is called structured programming. और दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है एग्जीक्यूशन का. When we'll design a program in OB, सपोज आपने 50 या 10 मशीन्स के लिए प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो PLC तो उसे एक ही कैलकुलेट करता है. आपने 50 के लिए भी बनाया होगा तो भी उसे एक ही कैलकुलेट करेगा बिकॉज सीरियली काम करता है. तो होता क्या है कि इट विल डायरेक्टली लोड इनटू द लोड मेमोरी. वो हमें पता है कि वो लोड मेमोरी में स्टोर होता है. एंड वी आल्सो नो दैट CPU विल नॉट डायरेक्टली एक्सेस द लोड मेमोरी. It will take the help of work memory to read out the program from load memory. Load memory से पहले work memory में जाएगा, work memory से CPU read करेगा. अब होगा क्या? work memory क्या है? हमारी RAM है. So when we are doing the linear programming, the whole program will be loaded in the load memory, and when CPU is in processing, the whole program that will be available in the load memory will be accessed by the work memory. Doesn't matter, out of 10, suppose we have 10 machines, out of 10 machines only 2 are in processing. It will call the whole program into the work memory. Suppose आपका जो प्रोग्राम है उसकी जो मेमोरी स्पेस है, सपोज वो लेके चलते हैं हम लोग कि वो है 250 KB का, और आपकी जो रैम है, रैम भी आपकी 250 KB की है, सपोज लेके चलते हैं इसको अभी. तो हुआ क्या कि हमने जब फ्री चलेगा CPU तो प्रोसेसिंग ज्यादा होगी, पर जैसे ही हमने एक 250 KB का प्रोग्राम हमने लोड मेमोरी में डाला यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग, तो डजंट मैटर उसमें से, उस प्रोग्राम में से 2 मशीनें चल रही है, 3 मशीनें चल रही है, वो 250 KB यानी कि जो भी पूरा लोड है उस मेमोरी के अंदर, इट विल बी डायरेक्टली कॉल्ड बाय द वर्क मेमोरी एंड एक्सेस्ड. दैट मींस आपकी जो वर्क मेमोरी है वो उसे पूरा का पूरा ही कॉल करेगी, एंड देन आपकी जो वर्क मेमोरी है वो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है फुल्ली. दैट मींस 250 KB का 250 KB. सो रैम के पास कोई फ्री स्पेस नहीं है, तो जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी इन केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, बिकॉज द होल प्रोग्राम इज कॉल्ड बाय द वर्क मेमोरी. तो प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाएगी. इन केस ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जब हम FC और FB के अंदर कुछ बनाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, एंड देन विल कॉल इट इनटू द OB एंड देन आफ्टर विल लोड इनटू द लोड मेमोरी, देन व्हाट हैपन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग, सपोज 5 में से 10 में से 2 मशीन्स चल रही है,
तो वर्क मेमोरी सिर्फ उन दो मशीन के डाटा को ही एक्वायर करेगी फ्रॉम लोड मेमोरी टू वर्क मेमोरी, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल रिमेन इन लोड मेमोरी। नाउ अब 250 केबी पूरा का पूरा वर्क मेमोरी पे नहीं गया। क्या किया हमने? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की वजह से सिर्फ एक कुछ हिस्सा उसका गया, और स्टिल वी हैव अ मेमोरी दैट विल बी फ्री। 250 की जगह सपोज हमने जो दो मशीनें चल रही थी वो चल रही है 50 केबी के ऊपर। नाउ 200 केबी हमारे पास फ्री बचा है, तो प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। हमारी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सारा का सारा प्रोग्राम एक बारी में कॉल नहीं होता, जो सिग्नल आता है उसी सिग्नल के अकॉर्डिंग उतना ही प्रोग्राम को लोड किया जाता है लोड मेमोरी से वर्क मेमोरी के अंदर। और इन केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा प्रोग्राम ही लोड कर दिया जाता है वर्क मेमोरी को। फॉर एन एग्जाम्पल हम आपकी मोबाइल की बात करें तो सपोज आपके मोबाइल में 6 GB रैम है और आपने मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करके रखी है, एंड वी ऑल नो ईच एंड एवरी एप्लीकेशन हैव सम मेमोरी स्पेस टू यूटिलाइज। हर एक का एक मेमोरी एरिया होता है और एक वेटेज होता है इन फॉर्म ऑफ बिट्स। ओके, सपोज बिट्स के बाद आ जाएगा किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स में आ जाएगा। तो आपने सपोज फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब कुछ एक साथ खोल के रखा है, और आपकी उन पेजेस में जितनी भी आपने वीडियोस या एप्लीकेशंस खोल के रखी है उनका भी एक अपना वेटेज है। फॉर एग्जांपल जब आप डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड में आता है कि 1 GB का डाटा है या 1 GB की वीडियो है, या और ये पर्टिकुलर पिक्चर इतने MB की है या KB की है। तो वो क्या करता है? उतना एरिया एक्सेस करता है, उतने एरिया पे लोड करता है। अब आपने सपोज मोबाइल में मल्टीपल एप्लीकेशंस खोल के रखी है और उनका भी एक अपना वेटेज होता है, और सपोज वो 6 के 6 GB उन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने में यूज हो रहे हैं। होता क्या है? आफ्टर सम टाइम आपका जो मोबाइल है वो या तो स्लो डाउन हो जाता है, या हैंग होने लगता है, या वो गर्म होने लगता है। तो रीजन क्या है कि देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन दैट विल बी ओपन एंड द वेटेज ऑफ देयर मेमोरी साइज विल बी एक्सीडिंग द कैपेसिटी ऑफ आवर रैम। तो रैम उनको एग्जीक्यूट और एक्सेस करने के लिए अपना फुल पावर लगा रही है, जिसकी वजह से वो हीट अप हो रही है। फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक मोटर है, मोटर की कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 100 kg का ही लोड तक को ही लिफ्ट कर सकती है। सपोज लिफ्ट के साथ वो मोटर लगी है। व्हाट इफ आपने 150 kg उस मोटर के लिफ्ट के साथ कनेक्ट कर दिया? इट विल लिफ्टिंग, बट क्या होगा? स्पीड स्लो हो जाएगी और मोटर हीट अप होगी, और इन केस ज्यादा लोड आता है और ज्यादा देर तक वो ऑन रहता है तो इट में बर्न आउट। और ये सिस्टम आपके मोबाइल के साथ भी हो सकता है। दैट्स वाई हमारे मोबाइल्स में रैम बूस्टर का एक एप्लीकेशन हमेशा रहता है, सभी के साथ रहता होगा। हम लोग रैम रिलीज करते रहते हैं, वो इसीलिए रिलीज करते हैं कि जो बैकग्राउंड में हमारे पास एप्लीकेशंस ओपन है जो कि हमारे रैम के स्पेस को एक्वायर कर रही है, उसे हम रिलीज कर दें सो दैट हमारी रैम फ्री हो, एग्जीक्यूशन प्रॉपर है, हीट अप ना हो हमारा मोबाइल। आप ये करके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैसा ही हमारे पीएलसी के साथ भी है। लीनियर प्रोग्रामिंग में फुल लोड वर्क मेमोरी पे चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो मेमोरी है वो फुली एक्सेस हो रही होती है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन जो है वो स्लो हो जाता है। और इन केस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ओनली दैट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विल बी executed by or called by the work memory that will have that particular time of at that particular time that particular program having a signal. और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल बी रिमेन इन लोड मेमोरी। तो हमारे पास रैम फ्री है तो एग्जीक्यूशन ज़्यादा होगा, हीटअप ज़्यादा होगा, और आपकी पीएलसी की लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो ये डिफरेंस आ जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर, और दैट्स व्हाई वी कॉल एफसी एंड एफबी एज अ सब रूटीन। नाउ discuss about FC. FC stands for function. अब FC एंड FB में क्या है? दोनों ही स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के पार्ट है, दोनों में ही प्रोग्रामिंग सेम तरीके से होगी सिंबॉलिक में, बट डिफरेंस क्या है? The difference is that FC doesn't has its own memory. FC के पास उसकी अपनी मेमोरी नहीं है। That means at where FC can store the data. So FC is used to define a function which executed on command
from an organization block or OB. FC can be thought of a subroutine, वो मैंने बता दिया, which the programmer can call from other blocks in the PLC program. हम इसे कॉल कर सकते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर, और FC के साथ मेमोरी अवेलेबल नहीं होती. So whatever the parameters that will be assigned, that will be available with the FC, that will be stored, whatever the memory will specify, we will specify like MW0, MD0, M0.0, on that particular memory it will store the data. It will store the data. So it hasn't their own memory. It hasn't its own memory. Okay, so in case of FB, FC same as like FB same as like FC, that means function block. प्रोग्रामिंग टेक्निक सेम है, पैरामीटराइजेशन करना जो भी हम लोग इसमें सिंबॉलिक एड्रेसिंग करेंगे वो सेम करेंगे, बट डिफरेंस है कि FB हैज इट्स ओन मेमोरी and that memory space will be generated by the CPU itself. User cannot define that memory space. User define नहीं कर सकता, वो जनरेट होगी CPU के थ्रू, और उस मेमोरी को कहते हैं इंस्टेंस डेटा ब्लॉक. So whenever we'll call the FB, it will come up with the instance data block. Instance data block is nothing but a memory space that will be generated by the CPU itself. And all the parameters that are available with the FB block, the data are stored into its instance data block. तो जितने भी पैरामीटर्स उसमें हमारे पास होंगे, जो भी ऑप्शंस होंगी इनपुट्स आउटपुट्स की, that will be stored into its instance data block. Now again एक और डिफरेंस बताता हूँ. Suppose आपसे mistakenly FC डिलीट हो गया, that is function. So whatever the data that particular FC has, it will also be vanished. But if अगर आपने FB गलती से डिलीट कर दिया तो उसका डाटा आपको मिल जाएगा, बिकॉज इंस्टेंस डाटा ब्लॉक प्रोग्राम से तो डिलीट हो जाएगा, बट प्रोजेक्ट ट्री में आपके पास वो अवेलेबल रहेगा इन द फॉर्म ऑफ इंस्टेंस डाटा ब्लॉक, और वो नंबर रहेगा उसके ऊपर. तो जैसे आप उसे क्लिक करोगे तो जो भी उसके अंदर वैल्यूज रहेंगी वो आपको शो हो जाएंगी और आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो. ये एक और डिफरेंस है. तो फंक्शन ब्लॉक has its own memory that is called instance data block, and that will be generated by the CPU itself. All the parameters of FB block are stored into its instance data block. अब यहाँ पे डबल टाइप की स्टोरेज हो रही है. एक whatever the memories will specify to FB, like its input and output पे अगर सपोज हमने MW0, MD या बिट टाइप की मेमोरी असाइन कर दी, वो तो अवेलेबल है ही है. उसके अलावा इसके पास एक अपनी मेमोरी है जहाँ पे जो भी हम असाइन करेंगे और उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो सारा का सारा स्टोर हो जाएगा इंस्टेंस डाटा के अंदर. तो ये एक डिफरेंस है FC एंड FB में, और इन्हें कहते हैं सब रूटीन्स. सब रूटीन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इन्हें मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है, अगर सेम टाइप का प्रोग्राम है तो. नाउ टर्निंग टू द DB स्टैंड्स फॉर डाटा ब्लॉक. डाटा ब्लॉक एक मेमोरी है, इसमें हम लोग प्रोग्राम नहीं बनाते. ये रिटेंटिव टाइप की मेमोरी है और हम इसे रिटेंटिव बना भी सकते हैं. हाँ, एक और चीज, OBs तो मैंने बता दिया आपको कि 122 है और अराउंड 12 to 14 OBs हमारे पास और है OB1 के अलावा. FC and FBs 65535, that much FCs and FBs we have, each and every block. That means FC has 65535 and FB have 65535 counts, number in counts. That much FBs and FCs you can design. अब बात करते हैं DB stands for data block. ये सिर्फ एक मेमोरी है, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं होगी. We cannot do any program into the data block. Okay, we can either store the result or use that memory as an input for any program. या तो हम इसमें किसी रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं या हम इस मेमोरी का एड्रेस यूज करके उसे एज इनपुट यूज कर सकते हैं.
अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे, वो हम देखेंगे। सेकंड थिंग इज कि ये एक वाहिद ऐसी मेमोरी है, इट इज अ काइंड ऑफ अ मेमोरी वेयर फ्रॉम बिट टाइप to 64-bit data we can store directly without specifying any data type. हमारे पास अभी तक जो हमने मेमोरी डिस्कस की है वो है एम बिट टाइप, बाइट टाइप, वर्ड टाइप, डबल वर्ड टाइप, दैट्स इट। बिट टाइप में सिंगल बिट का एड्रेस स्टोर हो सकता है, बाइट में 8 बिट्स का डाटा यानी कि 256 बिट्स तक का डाटा हम लोग, अकाउंट्स तक का डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। 16 bit का data we can store in memory word, and 32 bit of data we can store in double memory word. But we don't have any other memory where we can store a 64-bit data. That is called long real. Long real. तो 64 बिट के डाटा को स्टोर करने के लिए भी हम लोग डाटा ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। और ये केबीज में ही है, ज़्यादा नहीं है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीबीज जो इसकी कैटेगराइजेशन है। वन इज शेयर्ड एंड global DB. Shared and global DB, one is the same thing. That means that can be used as a memory which can be used either as an input or as an output and called by any logical block. That's why it is called as shared or global. That means अगर हम इसे OB के अंदर कॉल कराना चाहें तो कॉल करा सकते हैं, FC के अंदर कॉल कराना चाहें कॉल करा सकते हैं, FB के अंदर कॉल कराना चाहे इस मेमोरी को तो हम लोग कॉल करा सकते हैं। मतलब वी कैन यूज दैट मेमोरी इधर इन FB, FC और OB, किसी में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बट इंस्टेंस डाटा ब्लॉक, the second block is instance data block. That will be generated by the CPU only. We cannot call it anywhere. ना ये हम इसे OB के अंदर कॉल करा सकते हैं, ना FC के अंदर कॉल करा सकते हैं, कहीं पे भी कॉल नहीं करा सकते। इसे सिर्फ CPU ही जनरेट करता है। हमारे पास ऑप्शन आती है बट विद द इंस्ट्रक्शन, जहां पे हम इसे खुद से डिजाइन करते हैं, ओके। बट जनरली इट विल बी जनरेटेड बाय द CPU एंड कॉल्ड बाय द CPU। तो जो भी पैरामीटर्स होंगे उस पर्टिकुलर ब्लॉक के जिसके साथ इंस्टेंस डाटा ब्लॉक कॉल होगा, वो सारे के सारे स्टोर होंगे उसके IDB के अंदर, इंस्टेंस डाटा ब्लॉक के अंदर। ओके, सो अभी थ्योरी पार्ट समझ में आया जो मैंने बोला? Yes or no? Yes, sir. Good. Now let's have a practical of this. कैसे इसको execute करते हैं, then we'll turn into the Am I audible? Good. Okay, so let me present again with another system. So अब बात करते हैं हम लोग इन ब्लॉक्स के बारे में। So where will find these blocks? Okay, पहले तो कहाँ गए टैग्स? Sorry. Now in program blocks, in project tree, in program blocks, we have an option of add new block. Click on it, so you'll get the options. OB, FB, FC, and DB. Okay. When you click on OB, so these are the blocks out of 122 we can use. As you can see time delay interrupt, cyclic interrupt, hardware interrupt, time error interrupt, diagnostic interrupts. डायग्नोस्टिक इंटरप्ट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। होता क्या है कि
हर एक ब्लॉक की, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो कंट्रोलर्स एंड कंट्रोलर्स के साथ काम कर रहे थे, प्रोसेसर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो ईच एंड एवरी कोड और ब्लॉक हैविंग अ प्रायोरिटी सिस्टम. प्रायोरिटी सिस्टम मींस कि कितना इंपॉर्टेंट है. मे बी आपने पढ़ा होगा जहाँ पे हम पैरिटीज वगैरह जनरेट करते हैं, ठीक है. तो कौन सा ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एज वी नो अवर पीएलसी इज सीरियल इन नेचर, ठीक है. तो जो एक बार उसका प्रोग्राम हमने उसको पास आउट कर दिया, तो उस प्रोग्राम के बाद वो उस पाथ को फॉलो करेगी और मशीन तब तक ऑन रहेगी जब तक वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता. और जिस भी पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने उसे ऑन रहने के लिए कहा है, उतने टाइम के लिए वो ऑन रहेगी. सपोज बीच में कुछ मॉल फंक्शन हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का हाथ आ जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या मशीन में कोई मॉल फंक्शन होता है, कोई मशीन प्रॉपरली काम नहीं कर रही है और हमें उस पर्टिकुलर मशीन को रोकना है. तो ईदर वी हैव अ ऑप्शन कि will hit on stop, emergency stop, and it will disconnect the supply of whole processes. जैसे हम लोग इमरजेंसी स्टॉप प्रेस करेंगे तो जितनी भी मशीनें उस लाइन में होंगी वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी. बट अगर हमें स्पेसिफिकली किसी के ऊपर बंद करना है, देन विल कॉल अ सब इंटरप्ट्स. सो इन इंटरप्ट्स में क्या होता है कि इनकी प्रायोरिटी हाई होती है एज कंपेयर टू ओबी हैविंग द लीस्ट प्रायोरिटी. सो इफ अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग इन ओबी एंड अ इंटरप्ट अकर्स, वो भी हम ही जनरेट करते हैं कि कब आना चाहिए. जैसे कि सपोज किसी जगह पे मॉल फंक्शन, एक अलार्म जनरेट हो जाता है, तो अलार्म जनरेट करने के लिए भी हमने एक बिट दी होगी ना. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि लो लिमिट एंड हाई लिमिट के साथ एक हमारा आउटपुट कनेक्टेड है. तो जैसे ही वो हाई लिमिट जाएगा उसके साथ एक आउटपुट कनेक्ट हो गया. अब हमने ये देखना है कि वो आउटपुट कितनी देर तक सस्टेन रहता है. सपोज हमने एक लिमिट डाल दी कि अगर ये हाई लिमिट और लो लिमिट मोर देन 5 सेकेंड्स रहा, ऐसे ही रहा, then it will give a signal to an interrupt which will stop the system so that it will not create any malfunction or mishappening or any fault in the machine. तो क्या होगा कि after that time that particular signal will be generated and it will be connected with the interrupt, and that particular interrupt will be executed. It will stop the current execution. It will stop the execution of OB and access and stop that particular machine right away. तो हम इस पे भी करेंगे काम, बट अभी हम लोग इस पे कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको अभी कंफ्यूजन होगा इसमें, ठीक है. तो ये है हमारा डिफरेंट ओबीज, बट राइट नाउ वी हैव OB1. नाउ फंक्शन, पहले फंक्शन पे काम करते हैं. सो फंक्शन पे क्लिक किया, ग्रीन कलर का इंडिकेशन है, एंड ओके किया, तो ये हमारा फंक्शन खुल गया. There is no difference between OB and FC. How you can identify? Go check here. At here it will be written as FC. FC. तो इसमें भी प्रोग्रामिंग होगी. सपोज हम जानते हैं, we know that कि start and stop function is used everywhere in the industry and every machine, with every machine. So suppose there are 200 machines. You have to design the start and stop button for 200 machines because each machine requires start and stop button. So this type of logic, that means the DUL circuit जो आप बनाए थे starting and stopping के लिए, ये आपको 200 टाइम्स डिजाइन करना पड़ेगा. अभी मैं डिजाइन कर रहा हूं FC के अंदर, नो डाउट, ठीक है. तो ये आपको 200 टाइम्स डिजाइन करना पड़ेगा फॉर ईच एंड एवरी मशीन, बिकॉज ईच एंड एवरी. विजिबल नहीं है. प्रेजेंट मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? नो सर. क्या विजिबल है. विजिबल सर. भाई एक बार ना लॉग आउट होके वापस से लॉग इन हो जाओ.
मैं ही कर लेता हूँ यार। अभी है विजिबल? Yes, sir. और दूसरा, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि आप किस ब्लॉक में हो, तो यू कैन चेक द टैब्स। जो भी टैब आप पे होंगे वो इस तरह से ब्राइट लाइट में रहेगा, बाकी अनहाइलाइटेड मोड में रहेंगे। एज यू कैन सी ये बाकी ग्रे में है और जिस मैं ब्लॉक में हूँ वो व्हाइट कलर में है। तो अभी मैं वापस आ गया FC के अंदर। सो 200 टाइम्स आपको वो प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। रीजन, बिकॉज with each and every machine there are different input and different output connected with it. That's why you have to design 200 times if there are 200 machines. वैसे करने में तो फिर अगर आप उसको ऑन ऑफ करने में ही प्रोग्राम डिजाइन करने में ही इतना टाइम लगाओगे, क्योंकि इट विल टेक टाइम टू डिजाइन दिस लॉजिक 200 टाइम्स, तो फिर बाकी की प्रोसेसिंग कब करोगे? और इन इंडस्ट्री टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। जितना कम टाइम लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाओगे और उतना ही अच्छा मैन्युफैक्चरिंग जो डाउन टाइम है आप उसको कम कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग, अब नाउ वी नो दैट कि 200 मशीन्स के लिए स्टार्ट स्टॉप बनाना है, वी नो दैट कि हमें एक तरह का लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो वी नो दैट दिस पर्टिकुलर लॉजिक इज कॉमन फॉर 200 मशीन्स बट हैविंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर विल गो टू दी FC और FB। प्रोसेस सेम है। FC के साथ क्या होगा, मेमोरी नहीं मिलेगी, वो कहाँ नहीं मिलेगी वो भी दिखाऊंगा, और FB के साथ हमें मेमोरी मिलेगी। तो अब हमने दे दिया इस तरह का लॉजिक। नाउ वी हैव टू एड्रेस इट। अब यहां पे हम लोग फिजिकल एड्रेसिंग नहीं करेंगे, कोई भी फिजिकल इनपुट और आउटपुट असाइन नहीं किया जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक खाली इनपुट और आउटपुट लगा के दिखा रहा हूं डिफरेंस समझाने के लिए, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस। तो यहां पे हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना इनपुट ना आउटपुट। उसके लिए हम लोग कहां पे डिजाइन करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, ये जो ड्रॉप डाउन एरोस देख रहे हो इस पे क्लिक करेंगे और इस तरीके का एक चार्ट आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास है इनपुट आउटपुट, इनपुट टेम्परेरी कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो रिटर्न है एज यू कैन सी वॉइड लिखा है, तो C लैंग्वेज के साथ लिखा जाएगा और अदर इंस्ट्रक्शंस के साथ। अब यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज के लिए है, ये कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स मतलब रेफरेंस वैल्यू क्या, ये टेम्परेरी स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज आपकी यहाँ पे रहेगी, पर परमानेंट एज मींस एज द पावर टर्न्स ऑफ डाटा विल लूज, आपको रिटेन बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, अभी जो हमने अभी यहाँ पे इसमें देखा, इसको और घटाऊं तो मेरे पास एक इनपुट है एक आउटपुट है। अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, अब हम जानते हैं कि एक इनपुट है, अगर आपको देयर आर मल्टीपल इनपुट्स, इंसर्ट, ऐसे आप कर सकते हो। अब यहां पे दे दिया मैंने इसको स्टार्ट, एक जेनरिक नेम दे दिया, ये स्टार्ट है। डाटा टाइप ऑलरेडी बूल है, आप यहां पे कोई अलग से कमेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो उस पर्टिकुलर स्टार्ट के लिए। अदर जो है मेरे पास इस अभी जो लॉजिक बनाया है, एक एनो है और एक क्वाइल है, तो वो है आउटपुट। तो इसे दे दिया मैंने मशीन या लोड, जो भी आपको नाम देना है वो दे सकते हो आप। अगेन ये इसका डाटा टाइप बूल आ गया, आप यहां से डाटा टाइप चेंज कर सकते हो। तो अभी मेरे पास बूल टाइप का है तो मैंने बूल लिया, बूल मींस बिट टाइप, बूलियन टाइप। अब वापस गया यहाँ पे और यहाँ पे मैं इनको लोड कर दूंगा। लोड करने का तरीका, डबल क्लिक करो और टाइप करो हैश स्टार्ट, और अगर आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी आ जाएगा मशीन। सेव, दैट्स इट, गो इनटू द मेन ओबी। अब मैं मेन ओबी के अंदर हूं, मैंने इस ब्लॉक को यहां से प्रोजेक्ट ट्री से उठाया, ड्रैग किया और यहाँ पे कॉल कर लिया, आ गया मेरे पास। अब इस ब्लॉक को मैं जितने मर्जी टाइम चाहूं उतने मर्जी बार इसको कॉल कहीं पे भी करा सकता हूं। नाउ आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोवाइड डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट, डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट।
अभी तो यही एग्जांपल लिया. नाउ सी I0.0 Q0.0. Now here I can rename the tag that this is for machine 1 and this is machine 1, this is machine 2, this is machine 2. So I can rename the tags, but block is common क्योंकि सभी के लिए सेम था. I0.1 and here I0.2 and so on. Sorry, 1. इस तरीके से मैं इसको डिजाइन करूंगा, डाउनलोड करूंगा और दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. अभी आप देखेंगे तो ये इनेबल के ऊपर मैंने कोई स्विच नहीं दिया. ये इनेबल का मतलब है इस अगर आपको ब्लॉक को भी अगर कंट्रोल करना है कि कब ये ब्लॉक इनेबल हो और डिसेबल हो तो क्या होगा, फिर आपके पास दो इनपुट्स होंगी. पहले आपको इनेबल इस ब्लॉक को ऑन करने के लिए यहाँ से इनपुट देनी पड़ेगी, देन उसके बाद ये स्टार्ट होगा. तो डबल काइंड ऑफ सिक्योरिटी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो कि व्हेन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक शुड बी एक्सेस्ड. नाउ कहाँ गया, ये आ गया हमारे पास. अभी देखो ये ENO के ऊपर अच्छा I0.0 ऑन है, तो देखो ये ब्लॉक हमारा हाई है. अभी मैं जाता हूँ I0.0 को ऑफ करता हूँ यहाँ से और लेते हैं यहाँ पे I0.1 Q0.0. तो ब्लॉक एक ही है बट नाउ वी हैव डिफरेंट इनपुट्स और डिफरेंट मशीन्स और प्रोसेसेस. जैसे ही अभी आप देखो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ब्लॉक इनेबल है. तो अब जाए 1 करें, ट्रू, तो आउटपुट ट्रू होगी हमारे पास. यहाँ पे दूसरी इनपुट को भी ट्रू करते हैं, दूसरी इनपुट भी ट्रू होगी. और इसी तरीके से आप मल्टीपल टाइम इस ब्लॉक को यूज कर सकते हो. आपने सिर्फ एक बार बनाया और आप इसे मल्टी टाइम यूज करके डिफरेंट इनपुट्स दे सकते हो. बट ये काम वहीं पे ही करेगा जहां पे यू आइडेंटिफाइड कि मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए सेम ही प्रोग्राम बनेगा. सो आपकी लेबर यानी कि जो आपका एफर्ट है फॉर डिजाइनिंग मल्टीपल टाइम द सेम प्रोग्राम, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है. यहाँ पे आप उसे एक बार कॉल करोगे, सिंबॉलिक एड्रेसिंग दोगे और चल लोगे. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑन ये ऑन ये ऑन ऑन. और यहाँ पे एक चीज और दिखाने वाला हूँ मैं जो इंपॉर्टेंट है. अभी मैं ऑफ कर देता हूँ इसको. Now we'll go into the block as we have seen that we have mentioned the output, the machine at output. And as we can see that output will be designated at the right side of the block and inputs are designated at the left side of the block. तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि जो आपकी इनपुट्स रहेंगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगी और जो आपकी आउटपुट्स होंगी वो राइट हैंड साइड पे आएंगी. अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, अब कंपटीशन की बात करें, अगर सपोज आप मल्टीपल वहां पे लोग हैं या और भी लोग उस इंडस्ट्री में काम करते हैं जो कि जानते हैं थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग, तो देखो यहाँ पे आपका प्रोग्राम, आपकी टेक्निक नहीं कोई जान सकता बिकॉज लॉजिक इज बिहाइंड दिस FC. लॉजिक आपने FC के अंदर बनाया है और वो एग्जीक्यूट कहाँ होगा, OB के अंदर. OB के अंदर वो हमेशा ब्लॉक फॉर्म में ही आएगा. नो वन एबल टू नो और अंडरस्टैंड कि विच टाइप ऑफ टेक्निक यू आर यूज्ड टू डिजाइन दिस लॉजिक. सेकंड थिंग, यू कैन पासवर्ड प्रोटेक्टेड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. यू कैन पासवर्ड प्रोटेक्टेड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. तो कोई इसको ओपन भी नहीं कर पाएगा. तो अगर कोई मॉल फंक्शन आता है तो मजबूरन आप वो कंपनी आपको बुलाएगी ही बुलाएगी. और कोई अगर बीच में होते ही है ऐसे कि कंपटीशन क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई एरर करते हैं, तो यहाँ पे एरर करने का भी कोई चांस नहीं है क्योंकि ब्लॉक है. ब्लॉक में तो इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिफाइंड है. तो यहाँ पे ना कोई NC दिख रहा है, ना टाइमर दिखेगा, ना कोई और चीज दिखेगी. कहाँ पे वो जाके उसको चेंज करेगा सो दैट कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो. तो ये एक चीज आ गई कि सिक्योरिटी लेवल बढ़ गया आपका. नो वन कैन टेक अ लुक और पेप इनटू योर लॉजिक कि कौन सी टेक्निक आपने यूज की है. अब जो मेन चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे इनपुट्स एंड राइट हैंड साइड पे आउटपुट्स. अब हम इस ब्लॉक को चेंज करते हैं. चेंज इन द सेंस अब वापिस आते हैं हम लोग DOL के ऊपर.
नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ सी व्हाट हैपेंड। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब एक और इनपुट आ गई हमारे पास स्टॉप। इतनी ज्यादा इनपुट्स आती जाएंगे, आप ऐड करते जाओ। आउटपुट हमारे पास एक ही है, मशीन, तो अकॉर्डिंग टू दैट कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं स्टॉप और यहाँ पे मशीन, क्योंकि वी नो कि आउटपुट हाई रहनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये वाली मशीन तो ब्लैक कलर में यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, बट ये यहाँ पे ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो रही है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट विल नॉट बी कंपैटिबल विद दिस थिंग। अब रीजन क्या है, कोई बता सकेगा? अभी सेव करते हैं और वापस से ओबी के अंदर जाते हैं, देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। ये इसमें चेंजेस हुए हैं तो ये रेड कलर का दिखा रहा है। ओहो, ऑफलाइन। मैं वापस से कॉल कर रहा हूँ। सी मशीन, अब हम इसको चला के देखते हैं। मैं आपको अभी इसमें एरर है i0.0 i0.1। अब मैंने एक और ब्लॉक ले लिया, मल्टीपल ब्लॉक लेते हैं, ये मशीन 1 टैग रीनेम कर सकते हैं। i0.2 i0.3, ये आ गया हमारा q0.1 और ये q0.0। सेव। अभी इसमें एक एरर है, बट कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में उसने शो नहीं किया। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिजाइनिंग। ओके, तो इस सॉफ्टवेयर में नहीं शो किया, बट यहाँ पे एरर है। क्या है वो अभी देखते हैं हम लोग। अभी जाते हैं यहाँ पे, i0.0 0.1 है हमारा, और यहाँ पे i0.2 एंड i0.3 i0.3। ये भी इनपुट आ गई। अब ऑन कर रहे हैं हम लोग, तो आउटपुट ऑन हो रही है। कहाँ गया, ये रहा, आउटपुट ऑन हो रही है। अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, व्हेन आई टर्न ऑफ बिकॉज ऑफ दिस लैच, इट शुड रिमेन ऑन। अब जाते हैं सिमुलेटर में, 0 साथ के साथ ऑफ हो गई। लैच ने काम ही नहीं किया, लैच ने काम ही नहीं किया। अब दूसरे में भी देख लेते हैं कि दूसरे में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है। ऑन, आउटपुट ट्रू हो रही है, बट जैसे ही ऑफ करेंगे वो भी ऑफ हो जाएगी। अब यहां पे जो एरर है वो एरर है सिंबॉलिक एड्रेसिंग का। वो क्या है, एज यू कैन सी दैट यहाँ पे ऑरेंज कलर का आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है बिकॉज वी हैव मेंशन्ड मशीन इन आउटपुट, in the output, but actually it is in out. This output is being fed as an input towards the coil. So this particular output is in out type. So whatever the output, that will be used at output and also be used as an input for next or the same branch. That particular output should come under in out section. अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। अभी आप देखो मेन ओबी के अंदर वो राइट साइड में शो हो रही है। जैसे ही मैं इसे इन आउट में डालूंगा, ये ऑरेंज कलर भी चला जाएगा। यहां से हटाते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको और यहां से डिलीट कर देते हैं और इन आउट सेक्शन में डाल देते हैं। ठीक है, इन आउट सेक्शन में आ गया। सेव, डाउनलोड, लोड, फिनिश। नाउ ब्लॉक में देखो ये मशीन भी ठीक हो गया, वो ऑरेंज कलर चला गया। प्रॉब्लम क्या था, डेजिग्नेशन का। वो इन आउट में जाएगा या आउट में जाएगा। अभी वॉच, अभी मेन ओबी में जाएंगे तो देखो क्या डिफरेंस आया। इन आउट भी लेफ्ट साइड में शो होता है। सिर्फ जो आउटपुट डेजिग्नेटेड आउटपुट्स होंगी, जो आउटपुट के सेक्शन के अंडर आएंगी, वही आउटपुट्स राइट साइड में शो होंगी। Otherwise, the inputs as well as the in-outs, that means the outputs that are output as well as inputs of some networks, they are come at the left side of the block. अभी देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। अब ये काम करेगा।
1 on, still on. The output is in true condition. वापिस से जाते हैं यार, एक तो ये मल्टीपल चीजें खुलती है ना। अब बात करते हैं स्टॉप, 1 स्टॉप, 0 स्टॉप। अब दूसरा काम कर रहा है वो भी देख लेते हैं, 1 ऑन और 0 पे भी ऑन है, यानी कि ऑन ऑफ के ऊपर ऑन, दूसरा ब्लॉक। और इसे हम, हाँ ठीक है, और स्टॉप बटन है हमारा ये, 1 ऑफ और 0 पे भी ऑफ। अब आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। It having the start, stop and machine. You can rename the tags using designated the machine number. So आपकी जो मेहनत है, जो एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा एफर्ट है, वो यहाँ पे सेव हो गया। तो स्टार्ट एंड स्टॉप तो बनेगा ही हर एक मशीन के लिए, चाहे 100 मशीन है, 1 मशीन है या 1500 मशीन है। So instead of designing a logic for each and every machine that will have the common logic, we'll design that logic into a subroutine either in FC or in FB and call it into the OB. And we call it into the multiple times, and then we'll provide different inputs and outputs as per the requirement. ये चीज समझ में आई? FC क्या है, सबरूटीन क्या है, कैसे काम कर रहा है, सिंबॉलिक एड्रेसिंग कैसे काम कर रही है, ये समझ में आया? हेलो, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग FB के ऊपर। अगेन एड न्यू ब्लॉक FB। ओके, राइट नाउ वी आर इन FB। ठीक है, कैसे पता लग रहा है? यहां पे सेम वो ही प्रोसेस है, डिफरेंस कहां आएगा जब हम इसे कॉल करेंगे। तो either we can design this like this or sorry, है नो। अभी यहां से ओपन करते हैं, बाकी सेम है, स्टार्ट, इन आउट, मशीन, और यहां पे ले लेते हैं स्टॉप, STOP, स्टॉप। ये आ गया, ये हमने यहाँ पे डेजिग्नेट कर दिए, और यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग स्टार्ट, स्टॉप, मशीन, मशीन, सेव। अब जाएंगे हम मेन ओबी के अंदर, और अब हम यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ये आ गया FB, ब्लॉक टू FB। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे कॉल किया, अब यहाँ पे इंस्टेंस डाटा ब्लॉक आएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस, this is the only difference between FC and FB. Rest everything is same. Okay, now you can see this is instance data block, और ये डाटा ब्लॉक आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट ट्री के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ये देखो, DB1 ब्लॉक 2 DB, ब्लॉक 2 सॉरी ब्लॉक 2 DB1, ब्लॉक 2 क्या है हमारा? FB। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा तो जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं, और जो भी डेजिग्नेशंस करूंगा वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर होती जाएंगी। अब मैं इसे यहाँ पे आके रिटेन कर देता हूँ, जब भी मैं इसे ऑन करूंगा, तो वट एवर द डाटा दैट विल बी प्रोवाइडेड टू FB विल बी रिटेन्ड, मतलब आफ्टर पावर लॉस भी वो डाटा यहाँ पे सेव रहेगा, वो वैनिश नहीं होगा। तो यही एक डिफरेंस है FB एंड FC के अंदर। रेस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, वही सेम तरीका है, बस ये एक मेमोरी का डिफरेंस है। जितनी मर्जी बार कॉल कर लो, every time when you'll call it, it will come up with the different DB. Now see, block 2 DB1, this is DB and this is sorry DB1 and this is DB2, DB1 dash DB2, तो ये आ गया। अब फिर कॉल करोगे तो this is how we'll distinguish between the FBs,
और FTs, यहाँ पे नंबर आते जाएंगे। अभी दिखाता हूँ, ये देखो FV1 ही है हमारे पास, बट देखो DBs के थ्रू डिस्टिंग्विश कर रहे हैं क्योंकि इंस्टेंस डेटा ब्लॉक लगा हुआ है, दैट्स वाई ये डिस्टिंग्विश। इसमें हमें डिस्टिंग्विश करने की जरूरत ही नहीं है, वो सेम ब्लॉक है, जो भी इसमें चेंजेस होंगे वो अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स होंगे। यहाँ पे ये क्या चीज कर रहा है, ये इंस्टेंस डेटा ब्लॉक है, तो डेटा ब्लॉक 1 से लेकर चलेंगे और जो भी पैरामीटर्स होगा वो उसमें स्टोर होंगे। अब उस पैरामीटर की स्टोरेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये FB कौन से का है, ब्लॉक कौन से उसमें चल रहा है, तो उसकी डेटा ब्लॉक से हम डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ ये इस पर्टिकुलर FB का डेटा ब्लॉक है। तो ये डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अब बात करते हैं हम DB की। इनको कर देते हैं डिलीट, बहुत ज्यादा हो गया इसमें। हम बात करते हैं DB, इंस्टेंस डेटा ब्लॉक हमारा हो गया। अब हम लोग शेयर्ड डेटा ब्लॉक की बात करते हैं। ओके, इनको भी डिलीट कर देते हैं साथ के साथ। अब बात करते हैं सपोज कि ओके अभी जो ये स्टॉप बटन है, यहाँ पे मैं स्टॉप बटन ना यूज करके मैं डेटा ब्लॉक का मेमोरी यूज करना चाह रहा हूँ और उस मेमोरी को मैं लॉजिकली हाई करता हूँ। सपोज लॉजिकली हाई करता हूँ, या चलो यहाँ पे ले लेते हैं, इस डेटा ब्लॉक को इनेबल करने के लिए एक मेमोरी चाहिए और यहाँ पे आउटपुट नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कोई मेमोरी है और उस मेमोरी से हम किसी और मशीन को चला रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मेन ओबी में एड न्यू ब्लॉक में जाएंगे और डाटा ब्लॉक में जाएंगे। डाटा ब्लॉक में सीधे ही आ जाएगा ग्लोबल DB। ओके, ये खुल गया। तो ये एक मेमोरी है, ये सिर्फ एक मेमोरी है और यहां पे भी आपने नाम दे दिया कि मशीन, और चलो ये ले लेते हैं कि ये जाएगा मशीन 1 पे। ठीक है, बूल टाइप आ गया, आउटपुट ले लेते हैं इसको और देखो यहाँ पे भी रिटेन का ऑप्शन है। अब मैंने इसको टिक कर दिया, दैट मीन्स वट एवर द डाटा दैट विल बिकम और having at that particular time when the power is turned off, that particular data will be saved permanently. So after turning on the input PLC, it will be there. तो यहाँ पे अब हम इसे कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे गए और ये आ गया हमारा ग्लोबल डेटा ब्लॉक। क्या किया फिर से देखो, मशीन पे गए, आउटपुट पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने लगा दिया डाटा ब्लॉक, ग्लोबल DB में गए और M1 जो हमने असाइन किया था, उसका डाटा टाइप बूल था, वो असाइन कर दिया। तो ये हो गया हमारा मेमोरी यहाँ पे। अभी मैं इसका यूज भी दिखाता हूँ। अब इनपुट पे लगाते हैं, इनेबल ब्लॉक F1। अब यहाँ पे एक और चीज करते हैं कि इसके साथ एक आउटपुट कनेक्ट कर लेते हैं। मेमोरी पे गए, अगेन यही चीज मशीन का, और फिर डाटा ब्लॉक पे गए और M1 लिया, सो दैट व्हेन दिस मशीन इज टर्न्ड ऑन, दिस विल बी टर्निंग ऑन दिस आउटपुट Q0.0। अब यहाँ पे हम एक मशीन लेते हैं, डाटा ब्लॉक में गए और यहाँ पे ले लेते हैं ENFC1। तो ये इसको मैंने नाम दे दिया। अगेन इसको बूल टाइप दे दिया, डाटा टाइप अकॉर्डिंगली। अगर आप बाइट के साथ काम कर रहे हो तो बाइट दोगे, वर्ड के साथ काम कर रहे हो वर्ड दोगे, डबल वर्ड के साथ काम करो डबल वर्ड दोगे, रियल के साथ काम करोगे रियल दोगे। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पहला लेटर उस चीज को दे देना है। जैसे कि ये इवेंट्स का आ गया, ठीक है। और सपोज यहाँ पे आई डालेंगे तो इंटीजर और IC काउंटर्स टाइप आ जाएंगे। डी डालोगे तो डबल इंटीजर्स, DTL डबल वर्ड, ये सब चीजें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। अभी हम देते हैं यहाँ पे B, दैट मीन्स बूल टाइप। सेव, और यहाँ पे गए हम लोग मेन OB के अंदर और यहाँ पे डबल क्लिक किया और ये इनेबल कर दिया हमने डाटा ब्लॉक 1। नाउ वी हैव दिस थिंग, वी हैव 2 एंट्रीज इन द डाटा ब्लॉक, सो वी नो दिस इज इनेबल के लिए है। अब सेव,
डाउनलोड, लोड। अब करते हैं मॉनिटर। ठीक है, अब हमने डाटा ब्लॉक ओपन किया। अभी क्या करते हैं, i0.0 को ऑन करते हैं, तो देखते हैं कि ऑन होता है या नहीं होता है। i0.0 को ऑन किया, 1 एंटर, देखो ऑन नहीं हुआ। रीजन, we have a security over here until unless this particular input doesn't get high, then this particular block remains in off condition। तो देखो इनपुट हमारी हाई है बट ये ऑन नहीं है। i0.0 हमारा हाई कंडीशन में आ गया, हाई कंडीशन में है। अब हमें इस मेमोरी को हाई करना है, तो इस मेमोरी को हाई करने के लिए हम गए डाटा ब्लॉक के अंदर। डाटा ब्लॉक के अंदर, डाटा ब्लॉक में हमने यहाँ पे डाला 1 और कर दिया एंटर, और यहाँ से कर ली हमने इसकी मॉनिटरिंग ऑन। मॉनिटर वैल्यू फॉल्स, यू वांट टू टॉगल द वैल्यू, यस ट्रू। 1 आया, टॉगल हो गई, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग मेन ओबी के अंदर, तो हमारा ब्लॉक हाई हो गया, और यहाँ पे हमारी आउटपुट उसकी वजह से हाई हो गई। यहाँ पे आउटपुट जनरेट हुई और यहाँ पे ये आउटपुट हाई हो गई। अब जाते हैं सिमुलेटर में और इनपुट को करते हैं ऑफ, i0.0। तो लैच का फंक्शन था, तो आउटपुट हमारी हाई है। जैसे ही दूसरी इनपुट को हाई करेंगे रिसेट को, ये रिसेट हो जाएगी, और अभी हमारा ये इनपुट इनेबल ही है। वापस डाटा ब्लॉक में गए, 0 टॉगल, यस ऑफ। दिस इज वन वे, डाटा ब्लॉक से मैंने इसे ऑन किया है। द अदर वे इज गो टू वॉच टेबल। नाउ we do not mention the memory of data block in address, we have to go to the name। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, अगेन ब्राउज करोगे, डाटा ब्लॉक ओपन करोगे, और जो भी मेमोरी आप, अब ये इनेबल इनपुट है, यहाँ पे ऑन कर दोगे। अब यहाँ पे मॉनिटर कर लेते हैं, अब ये ऑन है, अभी इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। वो हमने ऑलरेडी ऑफ की हुई है शायद, हाँ ऑफ है, तो अब हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं वॉच टेबल से। 1 राइट, तो सी ये ऑन हो गई। डाटा ब्लॉक में जाओगे वो भी शो कर देगा आपको, और इसको मैं रिटेन कर दूं, अगर पावर ऑफ हो जाता है तो भी ये सेव रहेगा। पावर ऑफ हो जाता है तो भी ये सेव रहेगा रिटेन में डालने के बाद। ठीक है, तो अभी अच्छा सेव करना पड़ेगा, रिटेन का ऑप्शन नहीं इनेबल किया था। ओके, रीइनिशियलाइज, रिटेनिंग की ऑप्शन देखो इनेबल की, तो वापस इसने रीइनिशियलाइज किया, पर मैंने अभी वापस से ऑफ कर दिया। ठीक है, तो वॉच टेबल में गए, अब यहाँ पे 1 डाल दिया, तो ट्रू हो गया। यहाँ पे भी ट्रू है, वहाँ पे भी ट्रू रहेगा, और वापस से वॉच टेबल में जाएंगे, तो थ्रू वॉच टेबल वी कैन ऑल्सो एक्सेस द shared and global data block, but instance data block will be shared by or created by CPU itself। ये क्लियर हुआ कैसे हमारे ब्लॉक्स काम करते हैं? This is called subroutine। So at a time we can create 64 subroutines। 64 subroutines at a time we can create, और in that the nesting depth मतलब ये हुआ कि आपने FB के अंदर FC कॉल कराया, फिर उसके अंदर कोई और FB कॉल कराया, FC मतलब एक के अंदर एक स्टैकिंग हो रही है, और वो नेस्टिंग जो डेप्थ है वो है 8 ब्लॉक्स की। तो आप 8 ब्लॉक्स को कॉल कर सकते हैं, जैसे हमने अभी OB के अंदर कॉल कराया, बट ये OB के बारे में नहीं है। सपोज यहाँ पे आपके पास एक लॉजिक है FB के अंदर, एंड देयर आर मल्टीपल अदर FBs आर देयर, सो FB6 calling in FB5, FB5 calling in FB4, FB4 calling in FB3, FB3 calling in FB2, FB2 calling in FB1। This is called nesting। So FB1 के अंदर FB2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो मैक्सिमम ये इस तरह से नेस्टिंग कर सकते हैं 8 ब्लॉक्स की। समझ में आया?
इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो ऐसा करो, अभी एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देख लो कैसे इसको यूज करना है, देन विल मूव टू दी टाइमर्स। अभी कितना टाइम हो रहा है? हाँ, तो अब ब्रेक भी साथ में ही समझ लो इसको और प्रैक्टिस भी देख लो। एट 4 PM विल स्टार्ट टाइमर्स। ओके, तो ये नेस्टिंग है, नेस्टिंग में सिर्फ सब रूटीन है, जो सेम टाइप के लॉजिक्स हैं उनको आप मल्टी